Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss lecture number 2 of chapter number 11, and our today's lecture is about effects of fertilizers on the growth of plant. The SLO that we are going to cover in this lecture is to recognize different types and functions of fertilizers used in plants cultivation. So dear students, अपने lecture को हम start करते हैं with a question. Imagine that you are growing a small vegetable garden at home. What do you add into the soil that helps the plant to grow bigger and healthier? Very good. Dear students, हम उसके अंदर fertilizers को add करेंगे. Now the question arises that what are fertilizers? So fertilizers are the substances that are added to the soil in order to improve their growth. तो हमारे पास fertilizers ऐसे substances हैं जो soil के अंदर add किए जाते हैं ताकि plant की growth को बेहतर बनाया जा सके. Because they provided the necessary nutrients. यहाँ पे कुछ nutrients हैं जो कि mention किए गए हैं that are provided to the plant with the help of fertilizers. इनमें से कुछ के functions हम discuss करते हैं. First one है हमारे पास nitrogen. So dear students, it helps the plant to grow leaf and impart green color. ये plant को help करता है growth करने में और उसके अलावा ये plant को green color भी देता है. Further हमारे पास है phosphorus. So phosphorus forms new roots, seed, fruit and flowers. It also helps the plant to fight against the disease. आप यहाँ पे easily observe कर सकते हैं. This is how the phosphorus deficient plant looks like. आप इन दोनों pictures में देख सकते हैं और वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास healthy maize है जबकि यहाँ पे phosphorus deficient maize है. Further हम चलते हैं अपने अगले nutrient की तरफ, that is potassium. Dear students, it helps the plant to make the strong stem and keep growing fast. उसके अलावा हमारे पास जो next है that is calcium. It helps the plants to grow roots and stand upright. And this is how the calcium deficient plants look like. इसके हमारे पास leaves बिल्कुल ही wilt हो चुके हैं. आप easily इनकी wilting observe कर सकते हैं. फर्दर हमारे पास है मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम plays an important helps in the plant to make chlorophyll which is essential for making food. यहाँ पे आपको दो leaves दिए गए हैं. The first one has low magnesium whereas the second one has adequate magnesium. आप जानते हैं कि अगर plants के पास chlorophyll की कमी होगी तो वो अपने खाने को synthesize नहीं कर सकेंगे और वो उनकी overall health के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगा. फर्दर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की तरफ, दैट इज सल्फर, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट प्रोटीन्स. इट इज an important part of different proteins and plants enzyme, and this is how the sulfur deficient plant looks like. आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लांट की नॉर्मल डाइट के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो इस तरह से उसके लीव्स हम ऑब्जर्व कर सकेंगे. फर्दर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में उसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लिया. उसके अलावा हमने देख लिया कि हमारे पास कौन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं और किस तरह वो उनकी हेल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट वी यूज़, जो कि प्लांट को हम देते हैं उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए. तो हम फर्टिलाइजर्स को क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में. द फर्स्ट वन इज द सिंथेटिक फर्टिलाइजर, दे आर ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जबकि सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गए हैं लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फर फॉस्फेट एंड दिस इज सल्फर फॉस्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट. अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हमारे पास मेन्यूर है, कंपोस्ट है, चिकन मेन्यूर है. आप इनमें से कोई सा भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों फर्टिलाइजर्स प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को हेल्दी ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे. अब इसी नॉलेज की बेस पर हम अपने एक स्किल दैट इज 11.1 हम उसको अचीव करेंगे, जिसके पहले हिस्से को हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अचीव किया था. उसी स्किल के सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे जो कि फर्टिलाइजर्स पर बेस करता है. इस स्किल को अचीव करने के लिए आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू डू दिस प्रोसीजर यू हैव टू टेक टू पोर्ट्स, लेबल वन एज द कंट्रोल ग्रुप वेयर एज द सेकंड वन एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. और आप एक पोर्ट के अंदर आप प्लांट ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर, जबकि पोर्ट नंबर 2 के अंदर आप किसी किस्म का फर्टिलाइजर ऐड नहीं करेंगे. आप इनमें से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्रश्ड एग शेल्स या फिर 2 टेबलस्पून ऑफ यूरिया, उसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑफ ग्राउंडेड कॉफ़ी. आप इनमें से कोई सा भी एक अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप 2 वीक्स के बाद अपने प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिएगा और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिएगा कि हमारे पास दोनों पोर्ट्स के अंदर प्लांट की ग्रोथ में क्या फ़र्क आया है.
नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इजीली इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो टी स्टूडेंट्स क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और मजीद कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।